So hello everyone, once again welcome to another very beneficial video. This video is basically on the demand of one of my subscribers who got stuck at one of the very important and new listening from the IDP. She even was unable to solve सेक्शन वन ऑफ दिस लिसनिंग टेस्ट. सो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस लिसनिंग को आपने कैसे करना है. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो, ये थोड़ी सी कैम्ब्रिज से अलग है, थोड़ी सी ये डिफरेंट है. ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज मल्टीपल चॉइस. इसके बाद आपको 4 जो क्वेश्चंस है वो मैचिंग द फीचर्स वाले हैं. इसके बाद जो 5 है वो आपको मैप है. तो स्क्रीन पे आई थिंक सभी को विजिबल होगा, ये पूरा का पूरा सेक्शन 1 आपके सामने है. सबसे पहले आई विल प्ले द कंप्लीट ऑडियो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20. You have to solve this question, so get your stationaries and everything ready. You have to solve and listen to the audio and complete questions 1 to 10, and do let me know in the comments kitne questions aapke sahi gaye and how many of you get all these answer correct. So without wasting time, I'm just going to play the audio, so focus on this listening test. So here it is. You will hear a woman talking on the phone to her friend about nearby restaurants. Fantastic place with so much to see. There was a brilliant craft show at the castle. Unfortunately, we missed the train as we got caught up in a long traffic jam. So we thought we'd grab something to eat while we wait for the next one. I'm glad you liked the place. The craft fair sounds good. Actually, I'm still at work. Something came up. So I'll be back late anyway. We tried that Indian restaurant you recommended, but it's fully booked. Can you recommend anything else? That's a shame. It's the best vegetarian restaurant in town. I've been going there for ages. They have a matar paneer to die for. Still, there's so much there. It depends on what you like. There's a great Italian seafood restaurant nearby. I would particularly recommend the tuna. It's always really fresh and tasty. But if you still want spicy food, there's also a Mexican taco place. You know I don't eat meat, but I think there's also an Argentinian steakhouse not far from where you are. I know the manager. He's actually from Argentina, but came over when he was about 8. So now he has a really thick local accent. The Mexican sounds good. I think we all love tacos. How do we get there? That's not too difficult. First, stand with the Indian restaurant behind you and cross the road. Then turn right and take the second road on the left opposite the mosque. Isn't that the road to the castle? No, it's the next street you want. There's a flower shop on the corner. Go up the road, past the large church on your left, and when you get to the crossroad, turn right. The Mexican restaurant is just a little way down the road after the antique market we went to on Wednesday. Great. I think I've got that. I'll call. सो नाउ अगर सभी ने इसको कर लिया होगा एंड जितने जिसके करेक्ट है मुझे कमेंट में जरूर बताना. सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि इसके आंसर्स क्या थे एंड कैसे इसके ये आंसर्स आए. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से. सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाई कुडंट द फ्रेंड्स ईट एट द रेस्टोरेंट द वुमेन रिकमेंडेड. क्योंकि क्या वो बंद था या वहां पे टेबल्स नहीं थे या दे कुडंट फाइंड द रेस्टोरेंट. सो नाउ लेट्स लिसन टू द रिकॉर्डिंग and let's see what is the correct answer to this question. You will hear a woman talking on the phone to her friend about nearby restaurants. We're still in town. It's a fantastic place with so much to see. There was a brilliant craft show at the castle. Unfortunately, we missed the train as we got caught up in a long traffic jam. So we thought we'd grab something to eat while we wait for the next one. I'm glad you liked the place. The craft fair sounds good. Actually, I'm still at work. Something came up. So I'll be back late anyway. We tried that Indian restaurant you recommended, but it's We tried that Indian restaurant that you recommended, fully booked. but it's fully booked. तो इसका आंसर क्या आना था?
ऑप्शन नंबर बी इसका क्लियर आंसर था, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर था। अब इसके बाद आपको वो क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट वाले बताएगा। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में आपके पास देखो अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन स्टार्टिंग उसने कहाँ से कर दी, इंडियन रेस्टोरेंट से। तो जो आपका फर्स्ट वाला वो आंसर बोलेगा वो इंडियन रेस्टोरेंट का आपका सबसे पहले आंसर बोलेगा। सो मेक श्योर कि आपने फोकस करना है इस वाली लिस्टिंग। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है ये ऑर्डर में नहीं है, थोड़ा सा ये इसको जंबल में उसने ऑडियो में बोला हुआ है। तो स्टार्टिंग उसने करी इंडियन रेस्टोरेंट से, दैट यू रिकमेंडेड, तो दैट मीन्स कि इंडियन रेस्टोरेंट का ही सबसे पहले आंसर बताएगा। हमारे पास 4 क्वेश्चंस है, मीट है, फिश है, वेजिटेबल्स है एंड स्पाइसी फूड है। नाउ लेट्स लिसन टू द नेक्स्ट ऑडियो एंड लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस नंबर 2, 3 एंड 4। Can you recommend anything else? That's a shame. It's the best vegetarian restaurant in town. दैट्स अ शेम। शेम मतलब ये बहुत गलत बात है कि आपको वहां पे टेबल्स ही नहीं मिले। इट इज वन ऑफ द बेस्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स इन द टाउन। तो जो आपका फोर्थ का आंसर था वेजिटेबल्स का, इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा। I've been going there for ages. They have a matar paneer to die for. Still, there's so much there. It depends on what you like. There's a great Italian seafood restaurant nearby. There's a great Italian seafood restaurant nearby. Italian seafood, तो सी फूड इनमें से कौन सा है, मीट है, फिश है, वेजिटेबल्स है या स्पाइसी फूड है? तो सी फूड इज ऑब्वियसली द फिश एंड इटालियन का उसने बोला, तो थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो थर्ड के आप आगे आपने ऑप्शन नंबर डी लिख देना है। I would particularly recommend the tuna. It's I would particularly recommend the tuna. ट्यूना एक फिश की स्पीशीज होती है जिसको जो कई लोग हैं वो प्रेफर करते हैं खाना, तो इसीलिए सी फूड की वहां पे उसने एग्जांपल भी दे दी ट्यूना। सो जो आपका थर्ड फिश वाला था, फिश मतलब ट्यूना की एग्जांपल थी जो कि एक सी फूड है, उसका आपका आंसर आ जाएगा इटालियन रेस्टोरेंट, मतलब डी इसका ऑप्शन आ जाएगा। always really fresh and tasty. But if you still want spicy food, there's also a Mexican taco place. But if you still want the spicy food, there's a Mexican taco place. Mexican taco place. Spicy food है जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। You know I don't eat meat, but I You know I don't eat meat, think there's also an Argentinian steakhouse not far. but you know there's also an Argentinian steakhouse not far away from the place. तो मतलब जो मीट वाला था उसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अर्जेंटीनियन। आई होप आपको क्लियर हो गया कि इसको इसने ऑर्डर वाइज नहीं किया था, थोड़ा सा जंबल था, कैसे किया, इंटरमिक्स था। आई होप ये आपको अब इजी लग जाएगा, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं मेन पार्ट ऑफ दिस लिसनिंग पे, दैट इज द मैप। अब मैप में हमारे पास सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो आपका है दैट इज द मॉस्क, इसके बाद फ्लावर शॉप है, लार्ज चर्च है, एंटीक मार्केट है, मैक्सिकन रेस्टोरेंट है। अब यहाँ पर आपके पास मैप दिया गया है। मैप में हमेशा अपने जो इंपॉर्टेंट चीजें देखनी होती हैं, आपको पता है ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे आपका साउथ होता है, यहाँ पे वेस्ट है एंड यहाँ पे आपका ईस्ट है। आपका लेफ्ट मतलब मैप का लेफ्ट, आपका राइट मतलब मैप का राइट। तो इतनी चीजें आपको क्लियर होने के बाद आपने देखना है कि मैप के अंदर आपको क्या दिया गया है। एक यहाँ आपको रोड दी गई है, कासल रोड, जो कासल की तरफ जा रही है। एक यहाँ पे आपको दे रखा है इंडियन रेस्टोरेंट, राइट। अब इसको हमने काफी ध्यान से समझना है, थोड़ा सा लिटिल बिट मे बी आपको कंफ्यूजिंग लगा, अगर तो इसके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ठीक लगा तो दैट इज वेरी 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 गुड कि आपको समझ में आ गया ये वाला मैप। सो लेट्स स्टार्ट द मैप। From where you are. I know the manager. He's actually from Argentina, but came over when he was about 8. So now he has a really thick local accent. The Mexican sounds good. I think we all love tacos. How do we get there? That's not too difficult. First, So how do we get there? That's not too difficult. तो यहाँ पे अब मैप की लोकेशन आने वाली है, आपने ध्यान से यहाँ पे सुनना है। stand with the Indian restaurant behind you. Stand with the Indian restaurant behind you. आपको पता है इंडियन रेस्टोरेंट कहाँ पे है? This one is यहाँ पे एरो बना के लिखा हुआ है, ये आपका इंडियन रेस्टोरेंट है। And cross the road.
and cross the road. अब रोड को आपने क्रॉस करना है. रोड क्रॉस करने का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर खड़े हो तो रोड को आप क्रॉस करके यहाँ पर पहुंच गए. इस वाले रोड के ऊपर आप यहाँ पर पहुंच गए. बस आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए and you will get all these answer correct. Then turn right and take the second road on the left opposite. Then turn right. आपने राइट की तरफ मुड़ना है. ये आपकी रोड थी, आपने राइट की तरफ गए. Then take the second left. इसके आगे let's see इसने आपके क्या बोला. थोड़ा सा मैं इसको रिवाइंड करने वाली हूँ. Stand with the Indian restaurant behind you and cross the road. Then turn right and take the second road on the left opposite the mosque. Then take the second right on the left opposite the mosque. तो यहाँ पे देखो आप इंडियन रेस्टोरेंट में हो, आपने रोड को क्रॉस किया. देन सेकेंड रोड का लेफ्ट, ये भी आपका लेफ्ट है. बी वाला पॉइंट भी, ए वाला पॉइंट भी आपका लेफ्ट है. तो उसने बोला सेकेंड लेफ्ट बोला अपोजिट द मॉस्क. तो सेकेंड वाला लेफ्ट आपका बी है, अपोजिट द मॉस्क मतलब इसके अपोजिट कौन सा है? सी. तो जो आपका मॉस्क है इसका आपका आंसर हो जाएगा सी. बहुत ज्यादा इजी था, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी. आई होप आपको समझ में आ गया वेयर इज द मॉस्क. अगर आपको स्टिल कहीं पर भी डाउट रहता है, यू कैन drop down your queries in the comment section on either you can WhatsApp me on the number given to you on the screen. So ठीक है, एक बार फिर से इसको रिवाइंड करके सुन लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए. That's not too difficult. First, stand with the Indian restaurant behind you and cross the road. Then turn right and take the second road on the left opposite. Turn right and take the second road on the left. Take right मतलब आपने राइट जाना है, तो आप राइट की तरफ, आपका राइट मतलब मैं आपका राइट. तो यहाँ पे आपने रोड क्रॉस करी, राइट की तरफ गए, तो आपने सेकंड रोड ली, सेकंड लेफ्ट आपने ये लिया अपोजिट द मॉस्क. तो सी वाला आपका क्लियरली मॉस्क का आंसर था. नेक्स्ट आपका आएगा फ्लावर शॉप. Opposite the mosque. Isn't that the road to the castle? Isn't that road to the castle? तो रोड टू कैसल तो आपकी अलग ही है. No, it's the next street you want. There's a flower shop on the corner. Go. There is a flower shop on the corner. तो कॉर्नर आपका क्या है? बी वाला है. There is flower shop on the corner. क्योंकि हमने स्टार्टिंग ही ये वाली स्ट्रीट से करी जहां पर आपने बोला अपोजिट द मॉस्क. तो यहाँ पर आप खड़े हो तो कॉर्नर पर ही आपकी फ्लावर की शॉप है. तो फ्लावर शॉप जो 7th है इसका आपका आंसर हो जाएगा बी. ये सारी की सारी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक ये इंटर रिलेटेड होते हैं. पहले उसने बोला आप यहाँ पर हो इंडियन रेस्टोरेंट पे, फिर आपने रोड को क्रॉस करा, सेकेंड रोड लिया आपने टू दी लेफ्ट, आप राइट गए. ऑब्वियसली आप राइट की तरफ जा रहे हो, लेकिन जो ये चीजें बनी हुई हैं ए बी बना हुआ है ये आपका लेफ्ट की तरफ बना हुआ है. उसने क्या बोला? सेकेंड लेफ्ट लेना है आपने. तो सेकेंड लेफ्ट ऑब्वियसली बी था, उसके अपोजिट मॉस्क है उसने बोला. तो सी वाला मॉस्क हो गया. तो बेसिकली आप यहाँ पर खड़े हो, तो उसने बोला isn't that street to the castle? नो, ये स्ट्रीट नहीं है. यहाँ पे आपका जो है फ्लावर शॉप है एट द कॉर्नर. तो कॉर्नर आपके सिर्फ यही कॉर्नर है जहां पर आप खड़े हो, और यहाँ पे कोई कॉर्नर है ही नहीं है. सो ऑब्वियसली जो आपका फ्लावर शॉप है उसका आपका आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट है आपका लार्ज चर्च. Go up the road, past the large church on your left, and when you get to the crossroad. Okay, let's listen to it once again. No, it's the next street you want. There's a flower shop on the corner. Go up the road. Go up the road. अब आप यहाँ पर खड़े हो, बी वाले पॉइंट के ऊपर खड़े हो, तो आपने रोड के ऊपर जाना. गो अप द रोड. आगे ध्यान से सुनना है आपने. अब जो नेक्स्ट 3 है ना वो एक साथ ही बोलेगा, एक ही लाइन में, सारे अगेन इंटर रिलेटेड हैं. लेट्स लिसन टू द ऑडियो. Past the large church on your left. Past the large church on your left. तो जब आप यहाँ से ऊपर जा रहे हो तो लेफ्ट पे तो आपकी एक ही चीज है जो ई है. आपका लेफ्ट मतलब मैप का लेफ्ट. जब आप रोड के ऊपर जा रहे हो उस पास्ट दी मतलब साथ, पास्ट होता है साथ. द लार्ज चर्च ऑन योर लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ आपका ई हो गया लार्ज चर्च का आंसर. नेक्स्ट आपका है एंटीक मार्केट एंड मैक्सिकन रेस्टोरेंट. And when you get to the crossroad, turn एंड व्हेन यू गेट टू द क्रॉस रोड. क्रॉस रोड मतलब ये जंक्शन हो गया. यहाँ पर आपकी ये क्रॉस रोड है, यहाँ पर क्रॉस रोड है. लेट्स सी उसके आगे आपने, इसने क्या बोला? right. The एंड टर्न राइट. आपका राइट मतलब मैप का राइट, आप राइट की तरफ गए,
ठीक है, राइट आपको पता है, यहाँ पे क्रॉस रोड है, यहाँ पर आप राइट की तरफ, यहाँ पर जा रहे हो राइट की तरफ. Mexican restaurant is just a little way down the road after the antique market we went to on Wednesday. तो यहाँ पे उसने क्या बोला, when you go up the road past the large church on your left, ठीक है, and when you get to the cross road, जब आप क्रॉस रोड की तरफ जाते हो आपने राइट लेना है, एंड जब आप राइट लोगे टर्न राइट, the Mexican restaurant is just a little way down the road, is just a little way down the road, रोड के नीचे little way down the road after the antique market. तो इसमें से एक आपका एंटीक मार्केट होगा, एक आपका इंडियन रेस्टोरेंट होगा, दोनों में से. देखो आपके सामने है, आप यहाँ पर खड़े हो, ये आपकी क्रॉस रोड है, यहाँ से आप राइट की तरफ गए, उसने बोला जो मैक्सिकन रेस्टोरेंट है वो लिटिल वे डाउन दी स्ट्रीट है, जस्ट आफ्टर द एंटीक मार्केट. तो आफ्टर बिफोर का आपको पता है, आफ्टर होता है बाद में, बिफोर होता है पहले. सो आफ्टर दी एंटीक मार्केट, तो क्लियरली एंटीक मार्केट का आंसर जी हो जाएगा, मैक्सिकन रेस्टोरेंट का आंसर आपका एच हो जाएगा. सो ये था आपका मैप. अगर सभी का मुझे कमेंट में जरूर बताना कि किसके कितने आंसर सही थे. बेसिकली जो मॉस्क था इसका आपका आंसर सी था, क्योंकि आप यहाँ पर खड़े थे इंडियन रेस्टोरेंट पे, आपने रोड को क्रॉस किया, उसके बाद राइट लिया, राइट जा रहे थे तो सेकंड लेफ्ट, सेकंड रोड, ये आपकी सेकंड रोड है, सेकंड लेफ्ट है ऑपोजिट दी मॉस्क. तो यहाँ पे सी आपका मॉस्क था, तो जहां पर खड़े हो ये आपकी थी कॉर्नर पे फ्लावर शॉप. इसके बाद उसने बोला गो अप दी रोड, आपने ऊपर जाना है, पास्ट दी लार्ज चर्च ऑन योर लेफ्ट, जो आपके लेफ्ट में ई पॉइंट था, जो आपका ई हो गया वो आपका लार्ज चर्च था, फ्लावर शॉप आपका ऑप्शन नंबर बी था. देन आप क्रॉस रोड पे हो, आपने राइट जाना है, दी मैक्सिकन रेस्टोरेंट डाउन दी स्ट्रीट जस्ट आफ्टर दी एंटीक मार्केट. तो जी आपका एंटीक मार्केट हो गया एंड एच आपका मैक्सिकन रेस्टोरेंट हो गया. सो मैंने ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनानी थी, तो इसीलिए आई जस्ट थॉट कि सिर्फ इसका सेक्शन 1 की डिस्कशन की जाए आज. ये बेसिकली फ्रॉम burlingtonenglish.com है. अगर आप एग्जाम को बुक करते हो एंड एड्रेस अपना डालते हो तो IDP वाले ये वाली बुक आपको प्रेपरेशन करने के लिए देते हैं. दिस इज द वॉल्यूम 2. वॉल्यूम 1 पहले आई थी, रिसेंटली वॉल्यूम 2 लॉन्च हो चुकी है. तो ये जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हो है, इसका जो स्टाइल है मे बी ये आने वाले एग्जाम्स में कॉपी हो सकता है. अदरवाइज कैम्ब्रिज की तो आपने करनी ही करनी है. ये इनकी वीडियोस, इनकी सीरीज भी आएंगी. अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया कि आपने ये फर्स्ट सेक्शन कैसे करना है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना. सेम लिसनिंग का सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4 पर भी वीडियोस आएंगी. एंड कल मैंने 21 जून की प्रेडिक्शन को भी किया था. आप लोग अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लेना. एंड अगर आपके पास कोचिंग के लिए टाइम नहीं है या आपकी कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, आप कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप मेरा स्पेशल डिजाइन किया हुआ क्रैश कोर्स को परचेज कर सकते हो, जो कि सिर्फ 99 रुपीज में है. सिंगल मॉड्यूल की प्राइस 99 रुपीज है. एंड आपको इसमें वो सभी चीजें मिलेंगी जो आपको प्रेपरेशन के लिए चाहिए. टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, PDFs हैं, प्रैक्टिस का मटेरियल है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जिसमें मैंने काफी अच्छे तरीके से सारे मॉड्यूल्स को कवर किया हुआ है. अगर आप क्रैश कोर्स ले लेते हो तो इसके बाद आपको कहीं पर भी जाने की नीड नहीं होती. एंड वीडियोस हमारी डेली आती हैं 6 बजे तक. तो मेक श्योर इफ यू आर न्यू टू माय चैनल डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस, ताकि ऐसी वीडियोस, बेनिफिशियल वीडियोस, आपके मुश्किल से मुश्किल टास्क को हम इजी करके आपके साथ जरूर वीडियो बनाएं. एंड आई होप सभी को ये वीडियो में समझ में आ गया होगा, ये मैप कैसे करना था, ये मैचिंग वाले क्वेश्चंस कैसे करने थे. तो अगर आपको वीडियो से समझ में आया हो तो इसको प्रैक्टिस एक बार जरूर करना. एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड कोर्स, क्रैश कोर्स के लिए जो आप मुझे सिर्फ आपने करना क्या, यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर गिवन टू यू ऑन दी स्क्रीन. इस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करके क्रैश कोर्स के लिए आप अपना परचेज कर सकते हो. एंड विच इज वेरी 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 बेनिफिशियल. तो अगर आप चाहते हो कि इसी लिसनिंग के ऊपर एक सीरीज पूरी बने, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना. इस फुल लिसनिंग के सीरीज में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी. 1 by 1 ई सेक्शन हम डिस्कस करेंगे. डेली 6 बजे इसकी वीडियो आएगी. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. And thanks for watching this video till the end. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS exam.